So now we'll go for the theory where we will analyze the IC engine mechanism for dynamic force. Dynamic force means considering weight of the connecting rod. Earlier it was static analysis where we had not considered weight of the connecting rod, but now we will consider the weight, because whenever it will be running at high speed, then the inertia force will be significant. Means we need to consider mass of the connecting rod. The static analysis will not give the exact analysis, so we have to go dynamic. चलो dynamic करते हैं. So in case of high speed, it is necessary to consider the effect of inertia forces arising due to mass of piston and mass of connecting rod. Mass of piston and mass of connecting rod. Such analysis is called dynamic force analysis or inertia force analysis, considering IC engine mechanism in which crank OC make angle theta with IDC inner dead center and rotating with clockwise direction as shown in figure. तो यहाँ पे एक फिगर बनाई. चलो जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी में ये फिगर बनाएंगे, because when I will go to the next slide, then you may not having this figure with you. Quickly I am going to explain this couple of time. This is all similar to the static force analysis जो हमने पहले किया, उसके जैसा ही फिगर यहाँ पे बन रहा है, but something is different here. So you can draw up a first figure in which there is a piston and piston is located at point P. तो यहाँ पे एक point P पे piston लगा हुआ है and there is connecting rod. So PC is connecting rod. ठीक है, बना लिया. फिर G is CG, यहाँ पे connecting rod होगा. So if I draw something which looks similar to connecting rod, तो ऐसा कुछ होगा. It is difficult to draw with the help of mouse. ओके, तो ऐसा कुछ कनेक्टिंग रोड होगा और यहाँ पे क्रैंक होगी ऐसा. But this is the schematic, means we are just drawing outline so that we can analyze well. तो अभी मैं ये सब कुछ निकाल देता हूँ. So point P is piston, G is CG, C is the connection between crank and connecting rod, O is crank center, and here it is having angle theta with IDC. Okay, with IDC we have angle theta and is rotating with omega radian per second. Omega radian per second की स्पीड से ये crank rotate हो रही है. Okay, so Fp is here and now Fi will be surfacing. Fi is now predominant because the mass we are considering, and we already know that it will be opposite to the primary motion. So Fp is forward, then this will be backward. एक और यहाँ पे फोर्स आपको अगर दिख रहा है तो Fc will go through this later. ये कहाँ से आ रहा है वो बाद में सोचेंगे. अच्छा, यहाँ पे एक डिस्टेंस है L1, मीन्स ये जो मास कनेक्टिंग रोड का जो मास है उसको हम स्प्लिट कर दिया तो एक मास हमको मिलेगा m यहाँ पे. So let me show this. यहाँ पे थोड़ा कट रहा है तो थोड़ा ये फिगर को ऊपर कर देते हैं and then we'll start it. Okay, earlier there was only mass of reciprocating and mass that remains same. पहले जो था वही होगा. Mass of reciprocating part means engine mr. पर ये m1 इंट्रोडक्शन हुआ. m1 कहाँ से आया? ओके, देखेंगे कहाँ से आ रहा है. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे लिखा है r is crank radius, l is length of connecting rod, mc is mass of connecting rod. ये जो mass connecting rod है उसका mc है. mr is mass of reciprocating parts means piston and gudgeon pin. k radius of gyration.
Now let us first find torque exerted on the crankshaft due to inertia force T1. Inertia force जो आ रहा है उसके वजह से एक torque generate होगा, पहले उसको find करते हैं. Since we have to consider the mass of connecting rod for dynamic force analysis, it is convenient to represent the connecting rod by its dynamically equivalent system. अभी हम क्या करते हैं कि ये connecting rod जिसका mass mc है उसको दो में divide करना चाहेंगे. कैसे करें? तो कुछ ऐसा, this mc should be transferred to M1 and M2 ताकि ये सिस्टम डायनेमिकली इक्विवेलेंट हो. तो ये पूरे मास को एक को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, दूसरों को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, देन वी कैन मूव फर्दर. तो इसीलिए पहले हमने ये डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम पढ़ा था. तो M1 M2 कहाँ कैसे आया? तो इसका MC जो है उसका एक आएगा यहाँ पे M1. दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग हियर. देख रहे हैं M1 कहाँ से आया कि कनेक्टिंग रोड को स्प्लिट किया तो एक मास यहाँ पे आया और दूसरा मास यहाँ पे जाएगा. तो ये यहाँ पे M2G जितना है. आ रहा है समझ में? M1 M2 कहाँ से आया? क्योंकि इसको हमने स्प्लिट किया. तो M1 is mass placed at point P and M2 is mass placed at B and C. और L1 is the distance between small end center and CG of the connecting rod. L2 is distance between peak and center and CG of the connecting rod. जो यहाँ पे L1 और L3 से बताया है. L2 नहीं लेना है बिकॉज करेक्शन कपल हमको लगाने के बाद ये आया है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज L3, वरना तो कहीं आगे चला जाता. तो एज पर द इक्विवेलेंट डायनामिक सिस्टम क्या होना चाहिए? MC is equal to M2 plus M2 होना चाहिए. M1 L1 should be equal to M3 L3 होना चाहिए और M1 is equal to M into L3. तो यहाँ पे L3 ये होना चाहिए. तो यहाँ से कट रहा है तो लेट मी अगेन एंड शो करके इसको भी थोड़ा ऊपर जाने देते हैं. कहाँ पे थे ये फिगर में? यहाँ पे. ओके यही रखते हैं क्योंकि एवरी टाइम इट विल हैपन. M1 is equal to ML3 by L1 plus L3. M2 is equal to ML1 divided by L1. ये कहाँ से आया? इक्विवेलेंट डायनामिक थियरी पढ़ के आया. चलो, at a small end we consider two masses. First is mass of reciprocating parts Mr and the mass M1. तो पहले पॉइंट के ऊपर, so in this figure C, Mr plus M1 कैसे आया? इसका आ गया यहाँ पे, वो ये लिख रहे हैं वहाँ यहाँ पे. Therefore, the total equivalent mass of the reciprocating is Mr plus M1 जो पॉइंट P के ऊपर है. So what is Fp? तो ये तो हमको पता है कि Fg में से Fi को निकालते हैं तो आपका Fp आ जाएगा. अगर न्यूमेरिकल में आपने देखा तो न्यूमेरिकल में स्टैटिक फोर्स एनालिसिस था तो हमने Fi कंसीडर नहीं किया था, बट यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज इट इज डायनेमिक. So Fp is equal to minus Fi. सो गैस प्रेशर अगर जीरो कर देते हैं तो वो अपने आप सीधे ही पिस्टन में जाएगा. इसीलिए the value of axial force acting on piston is equivalent to inertia force in magnitude but direction is opposite. ये माइनस इसलिए आ रहा है. when there is no gas force अगर नहीं है तो इतना inertia force आएगा. we know that the acceleration of the reciprocating part is given by this from the with reference to kinematics of the machinery. linkage इसमें अगर स्टडी ये हमने ऑलरेडी किया है. Therefore, axial force acting on the piston on inertia due to mass at point P is given by Fp, which is equal to Fi, equivalent mass acting at P into acceleration of the reciprocating part M into A. So, what is mass MC? What is acceleration Fp? तो Fp यहाँ पे आ गया और which is also equivalent to Fi. तो MC को रिप्लेस करते हैं, इक्विवेलेंट ME को रिप्लेस करते हैं तो Mr plus M1 हो गया और यहाँ पे Fp की वैल्यू फाइंड कर दी. तो इतना आपके पास फोर्स आ रहा है, फोर्स ऑफ पिस्टन. टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द, ये टॉर्क जो आ रहा है उसके वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा. कितना प्रोड्यूस हो रहा है? द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट ड्यू टू एक्सियल फोर्स Fp ऑन Fp और इनर्शिया फोर्स Fi इज एक्टिंग ऑन पिस्टन इज इक्वल टू Ft into R. ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, आगे की थियरी में से आ रहा है. टॉर्क इज Ft into R. तो यहाँ पे Ft क्या होगा? तो Ft is equal to this already we know, ये भी हमने पहले डिराइव किया था. Ft is equal to this. तो यहाँ पे आपको वैल्यूज चेंज करें तो Ft is replaced by Fp होना चाहिए. This is by mistake they have written Fp T1 is equal to Ft into R. Ft की वैल्यू यहाँ पे आ गई. अगर क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दिस.
तो एंटी क्लॉकवाइज को अगर लिखना है तो Ft की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो Fi, दिस इज नॉट क्लियर बट दिस इज Fi इंटू आर। ओके, तो ये नॉर्मल टॉर्क आ गया जो पहले भी था। तो एक टॉर्क जो क्रैंक पिन के ऊपर आ रहा है वो फाइंड किया। अच्छा, एक दूसरा भी टॉर्क आएगा, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट ड्यू टू करेक्शन कपल। हम फिगर में वापस जाते हैं, यहाँ पे हमने एक करेक्शन कपल लगाया है, ये रहा। तो ये करेक्शन कपल की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो वो हम फाइंड कर रहे हैं अभी। तो चलो आगे जाते हैं। टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट ड्यू टू करेक्शन कपल, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। For conveniency, we are assuming that out of the masses m1 and m2, mass m1 is placed at P and mass m2 is point C. Means we are keeping two masses arbitrarily. This assumption does not satisfy the condition for dynamic equation. Actually point C में रहना चाहिए, पर C नहीं आएगा, तो कितना हमें करेक्शन देना है? तो पहले हमने फाइंड किया TC should be equal to MC into K1 square minus K square. K1 is new, K is old into alpha. अगर क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमें लेना पड़ेगा माइनस, और अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर sin थीटा बाय, देखिए रेसिप्रोकेटिंग पार्ट में ये तो क्लियर है। K1 is radius of gyration of non-dynamically equivalent system which is also equal to L1 into L3, अगर dynamically equivalent नहीं है तो यहाँ पे फाइनली TC is equal to यही लिखना है minus MC into K1 square minus K square anti clockwise, or otherwise it is clockwise. Now considering two forces FC equal and opposite is applied at point P and C, so as to provide the correction couple TC। चलो मैं फिगर में वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे कपल प्रोड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? तो एक वर्टिकल डाउन और एक वर्टिकल अप फोर्स यहाँ पे देना पड़ेगा। मान लीजिए कि वो हमने दिया है FC, करेक्शन कपल है ना, तो कपल कैसे करें? तो ऑपोजिट फोर्स सेम रहना चाहिए, और यहाँ पे एक वर्टिकल तो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया FC, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा? FC इंटू दिस डिस्टेंस। So again we are going into theory, FC into Pn. So what is Pn? See this is Pn, तो Pn डिस्टेंस हमें मिल जाए तो ये करेक्शन कपल का वैल्यू हमें मिलेगा। So this torque due to this correction couple is equal to FC into Pn. Okay, so FC का फोर्स फाइंड करना है तो कितना होगा? TC by Pn. So torque acting on the shaft due to FC is equal to FC into NO. This is equivalent to T2. The torque acting on the crankshaft due to FC. Again I am going into figure. तो यहाँ पे हमने एक और फोर्स लगाया है FC। तो FC कहाँ पे लग रहा है? क्रैंक के ऊपर। F1 कहाँ पे लग रहा है? पिस्टन के ऊपर। तो यहाँ तो ठीक है चलो, पर यहाँ पे जो आएगा उसके वजह से ये फिर से टॉर्क बढ़ेगा ना। पहले तो एक टॉर्क था ही थ्रस्ट की वजह से, तो दूसरा टॉर्क आ गया इक्विवेलेंट फोर्स की वजह से। तो इसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू FC इंटू ON। चलो ON क्या कहाँ पे आता है तो देखते हैं। ON इज दिस, ON इज दिस, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना टॉर्क यहाँ पे आने वाला है, तो ये हम अभी फाइंड कर रहे हैं FC इंटू ON और NO। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ FE फ्रॉम इक्वेशन 5, तो यहाँ पे FE की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। देन वी विल राइट T2 इज इक्वल टू TC इंटू NO बाई PN, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 6। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास फिगर बना हुआ है, तो उसमें से आप देखिए ट्रिगोनोमेट्री, NO इज इक्वल टू OC बाई cos phi। तो मैं वापस फिगर में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट यू कंपेयर विद द कॉपी विच यू ऑलरेडी हैव इन योर बुक। OC is equal to cos theta, but OC is crank radius, so R cos theta. PN is equal to PC cos phi, and PC is nothing but correcting rod length. It is L cos phi. तो NO by PN करना है हमें, तो दोनों को रेशियो कर दिया, तो L by R का N हो गया। This is cos theta by cos phi। तो cos phi तो इक्वेशन में आना नहीं चाहिए, तो उसको रिप्लेस करते हैं आगे की थियरी में से। तो यहाँ पे राइट साइड एवरीथिंग इज इन थीटा, जस्ट सिंप्लीफाई, तो आपको मिल जाएगा NO by PN इज दिस। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो आपको T2 मिल गया। T2 इज इक्वल टू TC इंटू cos phi n स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या T2 है? T2 इज द टॉर्क ड्यू टू करेक्शन कपल। और फाइनली T3 फाइंड करना है, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट ड्यू टू वेट ऑफ मास M2 एट B एंड सेंटर C।
तो मास m2, फिर से मैं फिगर में जा रहा हूं, हमें जो मास यहाँ पे ट्रांसफर किया उसकी वजह से भी एक टॉर्क आएगा, उसकी वजह से भी एक टॉर्क आएगा। तो ये तीसरा टॉर्क हुआ। यहाँ पे लेट मी रिवाइज, क्रैंक के ऊपर देयर आर थ्री काइंड ऑफ टॉर्क। वन इज नॉर्मल विच इज ड्यू टू क्रैंक थ्रस्ट, अनदर इज ड्यू टू करेक्शन कपल एंड द थर्ड इज ड्यू टू वेट m2। तो ये T3 हम फाइंड करेंगे। It is nothing but m2g into OM. OM is nothing but r cos theta if it is anti-clockwise. So T3 भी हमें मिल गया। So total torque is equal to T1 plus T2 plus T3 अगर everything is anti-clockwise, otherwise one will be plus minus चलता रहेगा। But finally this is the total torque T1 plus T2 plus T3। तो ये जो एनालिसिस हमने किया वो किसके लिए किया? डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, मींस कंसीडरिंग द वेट ऑफ कनेक्टिंग रोड। तो यहाँ पे ये थियरी खत्म हो रही है। सो आई एम ऑल्सो एंडिंग दिस थियरी एंड द सेशन हियर।